जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाय। जो तू देहे सो कहाँ स्वामी, मैं मूर्ख कहन न जाय। सतनाम वाहिगुरु जी फरीदा। काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश। फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र निगी गोद अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों वड्डियां भागां वाले हो। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ 61 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। बाबा फरीद साहब आखते ने फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोग कहे दरवेश। बाबा फरीद साहब जी ने भावें ये पंक्तियां अपने दे उपर टुकाइयां ने, पर बाबा फरीद आप मालिक की बंदगी करके परमेश्वर दे नाल एक मिक रबी रूप ने। ते बाबा फरीद साहब ने अज रहमत की कि काले मैंडे कपड़े के मेरे तन दे उपर पाए हुए मैंडे तो भाव मेरे तन दे उपर पाए हुए कपड़े उन्हां दा रंग भी काला, और काला मैंडा वेश जो वेश है। वेश दे जो विद्वाना ने अर्थ किए ने वेश तो भाव पहरावा, जो मेरा पहरावा है वो भी काला है। क्योंकि सूफियां दे अंदर जिथे तन दे उपर काले रंग दे कपड़े उत्थे नाल ही खफनी जड़ी है गल दे अंदर वो भी काले रंग दी पाई जाती है। कहण दा भाव कि धर्मियां वाला ही मेरा लिबास है, जो लिबास तन दे उपर पाया है। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस, गुण ही भरिया मैं फिरा लोक कहे दरवेश। गुनाहां दे नाल भरिया हुआ पर लोक मैनू दरवेश कहते ने। दरवेश के अर्थ आप जियां ने पिछले दीवान के अंदर सरवण किए ने। बाबा फरीद साहब जी पिछले श्लोक अंदर किरपा की सी कि फरीदा साहिब दी कर चाकरी दिल दी लाहे भरान दरवेशां नो लोड़िए रुखां दी जिरान। उत्थे दरवेशां दी गल कीती ते अज बाबा फरीद साहब आखदे ने कि लोक मैनू भावें दरवेश कहंदे ने पर मैं गुनाहां दे नाल भरिया हुआ। हुण देखो भावें ये बाबा फरीद साहब ने अपने उपर ये पावन पंक्तियां टुकाइयां ने, पर बाणी आखदी है कि परथाए साखी महापुरख बोलदे सांझी सगल जहान है। ये उपदेश सर्ब सांझा है। बाबा फरीद साहब ने अज गल की कि बाहर तो भावें पहरावा धर्मियां वाला है, बाहर भावें चिन्ह जड़े ने वो भी धर्मियां वाले पाए हुए, पर दे हिरदे अंदर सच नहीं। तो वह बाहर का भावें पहरावा
ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ, ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੁਝ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਵਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਬਲਾ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਪਾਏ ਹੋਏ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਉਥੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਨੇ ਦਇਆ ਕਪਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਕਪਾਹ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਹੋਏ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸਬਰ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੋਵੇ, ਸਬਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ, ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਭਾਵ ਕੇ ਉੱਚੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇਰਾ ਇਤਫਾਕ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਇਤਨਾ ਪਾਕ ਹੋਏ, ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਗੰਢਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿੰਦ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕੱਤ। ਜੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਧਰਮ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰਕਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਪੰਥ ਨੇ, ਤੇ 22 ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਫਿਰਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਿ ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ ਤੀਨੇ, ਉਹ ਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕਾਜੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਤਵਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਜੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਣ ਕਿ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੇਲੀ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਬੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੋਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਪੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੰਗੀ ਪੱਗ, ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਧੋਬੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੇਲੀ ਆਪਣਾ ਬਲਦ ਲੈ ਕੇ ਕਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਬਲਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਲੀ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ
क्योंकि बलद मिलिया होया है। काजी ने फतवा पढ़िया ते तेली दे हक दे विच ते धोबी अपने सिर दे उपर पग दे उपर हाथ मार के आखदा है कि काजी साहब मेरी पगड़ी दा ध्यान करो। उहदा कहण दा भाव सी कि मैं तुहानूं पगड़ी दित्ती है रिश्वत विच, उस पगड़ी दा ध्यान करो। ते काजी अगों आखण लगा, भाई गुरदास जी कहते ने कि काजी आखण लगा तेरी पगड़ी ते बलद कल ही खा गया सी। कहण दा भाव कि रिश्वत लैके काजी लोकां दे हक दे विच फतवा पढ़दा है ते आखदा है कि ओह फतवा रब दा हुक्म है, ये रब दे बोल ने ते लोकाई नूं पुठे राह दे उपर पाया होया है। जदों गुरुदेव पातशाह ने गल कीती कि ब्राह्मण नावै जियां काए, ब्राह्मण कर्म कांडां दे अधीन लोकां नूं ठगी जा रहे ते केवल जिंदियां ही नहीं संसार दे चों जिहड़े लोग चले गए उन्हां दे नाम दे उपरों भी जो अजकल शराल चल रहे ने, 2 तरीक तो शराल शुरू होए ने, उन्हां दे निमित्त जो संसार तो चले गए ने उन्हां दे नाम दे उपर भी काजी लोकां कोलों ठगी जा रहा है। ते बाबा नानक आखदे ने कादी कूड़ बोल मल खाए, ब्राह्मण नावै जियां काए, जोगी जुगत ना जाने अंध। जोगी बड़े सियाणे सन, उन्होंने बड़ियां रिधियां सिद्धियां भी प्राप्त कीतियां, पर सतगुरु महाराज आखते हैं कि इस नाटक चेटक दे अंदर फस के अपने असले तो भुल गए। ताही गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जपजी साहब की पावन बाणी दे विच ये बचन कीते। महाराज आखते ने कि मुंदा संतोख जोगियां नूं कि हे जोगियो मुंदरा जड़ियां होण कंन दे अंदर पाइयां होण वो संतोख दियां होण। मुंदा संतोख शर्म पत झोली, जिहड़ी झोली तुसीं रखी हुई है लोकां दे घरों मंग मंग के लैके आंदे हो, ये शर्म दी होवे, भाव के मेहनत करके किरत करके तुसीं खाओ। बाबे नानक दा ते बचन ही किरत करना, नाम जपना ते वंड छकना है। वेलियां नूं रह के रब दी नाम दी गल नहीं कीती बाबे नानक ने। बाबा नानक आखते ने कि मुंदा संतोख, संतोख दिया मुंदरा होण भाव के जीवन संतोखी होए। मुंदा संतोख शर्म पर झोली, ध्यान की करे विभूत, जिहड़ी तर दे उपर विभूति स्वा मली हुई है ना, ये ध्यान दी होए। रब दी सिफसला दे नाल, रब दी बंदगी दे नाल जुड़ना, ये विभूति होए। मुंदा संतोख शर्म पर झोली, ध्यान की करे विभूत, खिंथा काल, मौत नूं सदा चेते रखना, ये गोदड़ी होवे। खिंथा काल कुआरी काया जुगत, इहदा विश्राम जिहड़ा है कुआरी काया जुगत के उपर है कि कुआरी काया, काया जिहड़ी है विकारां वालों कुआरी होए, भाव के इस विकार इस तन नूं इस शरीर नूं छो ना सकण। ते पातशाह आखदे ने कि कुआरी काया डंडा प्रतीत, प्रतीत दा भरोसे दा यकीन दा डंडा होए। ते आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत। फिर बाबा नानक आखदे ने कि आदेश तिसै आते, ये ना होए कि बाहर दा तन जिहड़ा है उसदे उपर श्रृंगार कीता होए कर्मां दा, तन दे उपर श्रृंगार कीता होए धर्म दे चिन्हां दा, पर हिरदे अंदर सच ना होए। ते सतगुरु महाराज अज दे इन्हां पावन सलोकां अंदर यही रहमत करते ने। बाबे नानक ने तिलंग राग अंदर रहमत की। गुरुदेव पातशाह आखते ने कि यह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। गुरुदेव आखते हैं कि यह तन जिहड़ा है माया की पा लगी हुई है, माया की कालख लगी हुई है इस तन नूं। ये तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए। ते ये तन रूपी जो लीतड़ा है ये लब दे विच लोभ दे च रंगिया भी होया है। ते फिर कहता कि वो तन मेरे मालिक नूं मेरे परमेश्वर नूं नहीं पांदा। जिहड़ा लब लोह दे रंगिया होए मेरे प्रभु नूं ते वो पांदा जो प्रभु की बंदगी दे विच प्रेम दे च रंगिया होए। आज बाबा फरीद साहब तां ही आखिया कि गुण ही भरिया मैं फिरां लोग कहें दरवेश। लोग आखदे ने दरवेश है पर मेरा हिरदा ते मैं जानदा हाँ। सतगुर आखदे ने कि यह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए मेरे कंत ना भावे चोलड़ा प्यारे। क्यों तन सेजै जाए हों कुर्बाने जाऊं मेहरबाना हों कुर्बाने जाऊं
हों कुर्बाने जाऊं तिना कह लैन जो तेरा नाव, लैन जो तेरा नाव तिना कह हूं सद कुर्बाने जाऊं। अगे आखते कि काया रंगण जे थी है प्यारे, जिस काया नू रंगना है ना ते रब दे प्रेम रंग दे च रंग। काया रंगण जे थी है प्यारे, पाइए नाव मजीठ रंगण वाला जे रंगे साहिब, ऐसा रंग ना डीठ। फिर जिनके चोले रतड़े प्यारे, कांत तिना कह पास। गुण ही भरिया मैं फिरा, लोग कह दरवेश। लोग ही मैनू दरवेश आखते ने, पर दरवेश वाले गुण में अपने जीवन के अंदर वसा लिया। बाबा फरीद साहब जी ਜਦੋਂ गुरु नानक सच्चे पातशाह ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, पर आचार किस तरह का है, जीवन किस तरह का है, व्यवहार किस तरह का है। गली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुदा कालियां बाहर चिटवियां। रीसा करे तिनाड़ियां जो सेवै दर खड़ियां, पर रीसा उन्हां दियां जो रब दे दर दे उपर खड़ियां हुईयां ने। भाव रब दे हुक्म दे तुरन वालियां, रबी रजा दे तुरन वालियां रीसा उन्हां दियां, पर गुण ही भरिया मैं फिरां। गुनाह दे नाल में भरिया हुआ, बाहर तू तन दे उपर शिंगार भी किए हुए ने, बाहर तू तन दे उपर चिन्ह भी धारण किए हुए ने, पर मैं अपना अंदर जानता हाँ। एक शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह का बड़ा कमाल का शब्द है। गुरुदेव ने श्री राग राग अंदर वो बचन किए ने। महाराज आखते ने कि एक सवान दो सवानी नाल, इस शब्द की ही व्याख्या है कि गुण ही भरिया मैं फिरा। बाबा नानक आखते ने कि एक सवान दो सवानी नाल, सवान कहा जाता है कुकर नूं, कुकर तो पाउंदा कुत्ता। सतगुरु महाराज आखते ने कि देखो हुण मैं बार बार ये बेनती कर रहा कि गुरु नानक सच्चे पातशाह का जां बाबा फरीद साहब जी का जां जिस भी गुरु पीर का जिन्हां महापुरुषों की बाणी गुरु ग्रंथ साहिब अंदर है, ये उन्हां दा हिरदा नहीं, ये साडे वर्गियां दा हिरदा है, जिन्हां लई गुरुदेव पातशाह बचन उचारण कर रहे ने। महाराज आखदे ने कि एक सवान हिरदे अंदर एक सवान लोभ रूपी कुत्ता बैठा हुआ है। दो सवानी दो सवानियां ने, सवानी कुत्तियां किहड़ियां, आसा और तृष्णा। एक सवान एक लालच रूपी कुत्ता हिरदे च बैठा हुआ है, उसदे नाल दो कुत्तियां ने, आसा और तृष्णा। एक सवान दो सवानी नाल भलके भौंकै सदा ब्याल, जड़ियां भलके ही, भलके कहंदे सवेर सवेरे ही अमृत वेले ही, जदों मैं मालिक दी बाणी पढ़न लगदा हाँ, रब दी सिफत सलाह कर लगदा हाँ, ते ये दोवें कुत्तियां जड़ियां ने भौंकणियां शुरू कर दिंदियां ने। भाव के आसा जो हिरदे अंदर वसी हुई है कि वह भी पदार्थ चाहिए मैनू, वो भी मंग मेरी पूरी हो जाए। ते तृष्णा दे अधीन सतगुर आखते ने कि मनुख सवेरे उठ के जो हाथ दे च गुटका होंदा है, रब दी सिफत सलाह दे नाल जुड़दा है, ये आसा और तृष्णा दोवें कुत्तियां जड़ियां ने ये मंगन लग जांदियां ने, भौंकण लग जांदियां ने। गुरुदेव पातशाह आखते ने कि एक सवान दो सवानी नाल भलके भौंकै सदा ब्याल। फिर आगे आखते कि कूड़ छुरा, छुरा भाव के जो असी नाइफ वरतते हैं जिहदे नाल किसी चीज़ नूं कट्टिया जाता है। गुरुदेव आखते ने कि जिस दे नाल मनुखता दा घाण किया जाए वो झूठ रूपी छुरा है। मैं लुकाई दे नाल, लोकां दे नाल, झूठ रूपी छुरे दे नाल लोकां दा कतल कर रहे हैं। झूठ छुरा मुठा मुरदार ते माया दे मोह दे विच ठगिया होया, पराया हक खा रहे, ये मुरदार खा रहे हैं। कूड़ छुरा मुठा मुरदार, धानक रूप रहा करतार, धानिया वाला रूप। धानवी तो भाव जो जंगलों के रहिंदे ने, मनुखा नूं मार मार के खांदे ने, जिन्हां दा बड़ा भयानक रूप है। गुरुदेव आखदे ने बस मेरा स्वरूप उस वर्गा हुए है। धानक रूप रहा करतार, मैं पत की पंद ना करनी की कार। पत तो भाव है पति ते पंध तो भाव है पति दी नसीहत, गुरु दी नसीहत, गुरु दा उपदेश, गुरु दी सिक्ख्या नूं कदे कमाया नहीं।
ना ही मेरी उस तरह की करनी बनी है। मैं पत की पंद ना करनी की कार हूं बिगड़ा रूप रहा विकराल। मैं बिगड़े हुए रूप दे नाल, जिसनों गुरदेव आखते ने कि करतूत पशु की मानस जात। जात ते मनुख दी है पर करतूत पशु वर्गी है। जो रब दियां दित्तियां हुई दातां ते प्राप्त कर रहे हाँ, रब दे दिते हुए सुख ते मान रहे हैं, पर रब याद नहीं है, फिर करतूत पशु दी होई ना। गुरदेव आखते ने कि तेरे ते ते ओ पशु भला है, खड़ खावे अमृत दे। जड़ा चारा खांदे ने, घास फूस खा के जड़े दुध की बाल्टी भर के देंदे ने, मनुख तेरे कोल ते ओ पशु भला है। ते गुरदेव आखने कि करतूत पशु की मानस जात में पत की पंद न करनी की कार हूं बिगड़े रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस एहो आधार। दाता एक तेरा नाम ही संसार रूपी भवसागर तू तारन वाला है। मैं उस नाम दा ही आसरा लिया है। मैं एहा आस एहा आधार। फिर अगे आखते ने कि मुको निंदा आखा दिन रात। मेरा जीवन किस तरह का है, मुख तू रात दिन निंदिया करना हाँ लोकाई दी। मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात। पराए घर नूं जोहदा हाँ तकदा रहिंदा हाँ, पराए तन नूं और पराए धन नूं। हिरदे अंदर जो बाबा फरीद साहब आखदे ने, लोग मैनू दरवेश कहते होणगे, लोग कहते होणगे ते धर्मी है, इन्हें धर्म के चिन्ह धारण किए ने, इहदा लिबास भी धर्मियां वाला है। पर मेरी हालत यह है कि मुख निंदा आखा दिन रात पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल। काम क्रोध तन दे विच चंडाल की तरह वसे होने धानक रूप रहा करतार। हुण इत्थे ही बस नहीं, गुरु नानक सच्चे पातशाह अगे आखते ने कि फाही सुरत, मेरी जी सुरत है, जरा ध्यान है, वो फाही है फसान वाली कि अज किवें किसी नूं फसाना है। चार टके लैण लई, चार धारण के पैसे लैण लई किवें किसी नूं मैं अपने मोह दे विच अपने कर्मां दे फसावां। कबीर साहब का बड़ा प्यारा बचन है, वो आखदे ने कि कबीर मनुख की हालत यह है कि बहु प्रपंच कर पर तन लियावै। सुतदारा पे आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट ना कीजै। अंत निबेरा तेरे जी पै लीजै। कपट ना कर, क्योंकि तेरे जिंद कोलों अखीर ये लेखा जोखा पुछया जाना है। जो तू चंगे जो तू माड़े कर्म कर रहे हैं ना, कीते कर्मां दा हिसाब तेनू देना पेगा। ते बाबा नानक अज आखदे ने कि फाही सुरत, मेरी सुरत फाही है, फसान वाली है। जिवें जंगल दे अंदर पंछियां नूं फसान लई जाल पाया जांदा है, मैं भी लोकां नूं फसान लई कर्मां दा जाल पांदा हां, धर्म दे नाम दे उपर जाल पांदा हां। लोग आके फिर उसी फसदे ने। फाही सुरत मलूकी वेस, मेरा वेस जिहड़ा है बड़ा मलूका है। भाव कि धर्मियां वाला जिन्हों देख के लोग प्रभावित हो जान, भाई इस तो वड्डा धर्मी कौन होएगा। सतगुरु महाराज आखदे फाही सुरत मलूकी वेस हो ठगवाड़ा। मैं ठग दा अड्डा बनया होया, ठगी दे सारे देश नूं ठगी जा रहा। खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। गुरदेव पातशाह आखदे ने मैं अपने आप में बड़ा खरा सियाणा हाँ, मेरे वर्गा कोई सियाणा हो सकता है। खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। फिर गुरदेव अखीरलियां पंक्तियां अंदर आखदे ने कि सतगुरु महाराज आखदे धानक रूप रहा करतार, मैं कीता ना जाता हराम खोर। हुण देखो गुरु नानक सच्चे पातशाह की कितनी निमरता है, कितनी निमरता दे जाके अपने ऊपर शब्द टुकाए ने महाराज ने कि मैं कीता ना जाता हराम खोर। हे दाता तेरियां दित्तियां रहमतां, तेरियां दित्तियां हुई अनायतां, तेरियां बख्शां नूं कदे तेरा शुक्र दे जुड़िया ही नहीं आ। तू संसार दिता, तू परिवार दिता, तू दुनिया दे सुख दिते, पर कदे रब दा शुक्र दे जुड़िया। मैं कीता ना जाता हराम खोर हूं, क्या मुंह देशना दुष्ट जोर। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार।
अज बाबा फरीद साहब ने आख्या कि गुण ही भरिया मैं फिरा, लोकां दे सामने में धर्मियां वाला लिबास पाया, काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोक कहें दरवेश। लोक मैनू दरवेश करते हैं। मैं एक गल करके समाप्ति करा। देखो, दुनिया के अंदर विचरदियां होया मनुख कोलों कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, भावें जाने विच ते भावें अनजान विच, जदों उदा गुनाह साबित हो जाएगा ते दुनिया की कोई ऐसी कचहरी नहीं जो उसनों माफ कर दे। भावें तुसी हिंदुस्तान ते भावें बाहरली कोई कंट्री होए, मनुख ने गुनाह किया है, अपने गुनाह के उपर पर्दे पाने के बड़े यतन करता है, पर जिस दिन उदा गुनाह साबित हो गया, दुनिया दियां कचहरियां, दुनिया दियां अदालतां उसके उपर सजा का दोष ला के उसनों फिर सजा दी जाएगी, उसनों जेल के अंदर डक दिता जाएगा। पर बाबा फरीद साहब आखते हैं कि मेरे मालिक की कचहरी ऐसी है, तू अपने गुनाह नूं मंगता लै, तू मन ते लै, मैं गुनाह किए ने, मैं मंद कर्म किए ने। सतगुरु महाराज ने आख्या ना कि कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मिठा माया। वो मालिक की कृपा के नाल गुरुदेव आखते ने मेरे राम राय ये नीच कर्म हर मेरे, हर हर दयाल। वो मालिक दयाल है, कर कृपा बख्श अवगुण सब मेरे। तू अरदास कर, दुनिया दी कचहरियां अंदर तू हो सकता है ना बच सके, पर रब दी कचहरी अंदर तू गुनाह नूं मंग लै कि मालिक मेरे को गुनाह हो गए ने। वो रब ते इतना बख्शिंद है कि पिछले अवगुण बख्श ले, पर आगे मार्ग पावे। पिछले अवगुणा नूं बख्श के फिर अगे राह पा देंदा है, ते रब दा घर इतना बेअंत है। गुरुदेव आखदे ने कि हमरी गणत ना गणिया काई, अपना बिरद पछाण हाथ दे राखे कर अपने सदा सदा। रंगमान उस मालिक ने मेरे कीते हुए मंद कर्मां दा भी ख्याल नहीं किया। रब ने अपने चरनां दे विच मैनू जोड़ लिया, मेरे पिछले सारे अवगुण मेरे पापां नूं उसने बख्श दिता है, क्योंकि मालिक दी कचहरी है। तू अपने गुनाह नूं मंग ते सही। अज बाबा फरीद साहब भी आखदे ने कि इंसान रब दे हुक्म दे विच उस मालिक दी रजा दे, तू अपने गुनाह नूं मंग लै। कट तो कट गुरु दे चरनां दे आके आख के मालिक जी मैं कीता ना जाता हराम खोर, हूं क्या मुंह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार धानक रूप राह करतार। मेरे रब दा घर बड़ा बेअंत है, वो बख्श देगा। बाबा फरीद साहब ने रहमत की। वो आखन लगे कि फरीदा काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेश, गुण ही भरिया मैं फिरा, लोक कहें दरवेश। उस दरवेश के गुण हिरदे अंदर वस जान, जिन्हों बाबा फरीद साहब ने अपनी बाणी अंदर आख्या कि रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, ਜਿਹੜੇ प्रभु के रंग के अंदर रंगे हुए ने। विसरिया जना नाम ते भूए भारतीय आप लिए लड़लाए, दर दरवेश से तिन धन जड़ेंदी माओ आए सफल से। उन्होंने मां भी मुबारक है, उन्होंने मां भी धनता जोग है, जिन्हां दे करके वो जीव संसार दे चाहे। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि उन्होंने मां नूं भी मैं नमस्कार करदा हाँ। सतगुर कृपा करन बोलदियां बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है, संगत बख्शण जोग है जी। बख्श देना सारे प्यार का सबूत दिओ, आखो जी